electrolysis. Now we have written the four factors: nature of electrolyte, mode of electrolyte, nature of electrode, and concentration of the solution. Now there are two remarks we want to write, and that is going to help us understand how different products are formed. Okay. So write marks. The first point is, if solution has only one cation and one anion. Sir, your voice is cracking, sir. How is it now? Is it any better? Yes, sir. Better. Only one cation and only one anion. Then formation of product. Then formation of product. Can be easily predicted. Can be easily predicted, है ना? जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे एक you have Na plus only in the solution, you only have Na plus, then what will happen? Na plus is going to go to the cathode and वहां पे वो न्यूट्रलाइज होगा. What will happen after neutralization of Na plus? It will become sodium solid. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Correct है? And similarly, if you have Cl negative, that will go to the anode, and Cl in its neutral form in real world exists as Cl2. So only Cl2 will be formed. Okay, so when you have only one cation and one anion, then it is very easy to predict. Second point is that if solution has more than one cation or anion, then the anion with, because anion will go to anode, और anode में होता क्या? Oxidation. So the anion with higher OP and small size, ये भी matter करेगा, and small size gets preferred. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आएंगे जब एग्जांपल्स आएगा. Gets preferred at anode, and the cation with higher reduction potential, higher RP, small size, gets preferred at cathode. Gets preferred at cathode. All of you done writing? If you're done writing, then we are going to look at the different electrolytes. So first one जो हम लोग देखने जा रहे हैं, that is molten NaCl with platinum electrode. Molten NaCl with platinum electrode. Now we have already seen platinum is going to be an inert electrode and it does not do any reaction. It will not take part in the reaction. है ना? Platinum के बारे में नीचे भी हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में. It just provides surface for the reaction. Now,
NaCl, when you melt it, it will exist in the form of Na positive and Cl negative. What would happen at cathode? At cathode, you will have Na positive plus electron will give you Na solid. क्या हो रहा है? Basically reduction. And at anode, what will happen? Cl negative will form Cl2. बैलेंस अगर करेंगे इसको तो यहाँ पे या तो आप हाफ Cl2 लिख दीजिए या फिर यहाँ पे 2Cl लिख दीजिए प्लस यू विल राइट 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा मतलब मैटर नहीं करता है। बेसिकली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिएक्शन वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स में आपके पास है सोडियम सॉलिड एट कैथोड और दूसरा Cl2 गैस एट एनोड। ठीक है, ये तो आसान है काफी। द मोल्टन मोल्टन स्टेट। उसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। All of you understood till here? Yes or no? Please tell me. हर्षा, Yes, यहिया, sir. मरियम, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके। नुहा अभी आई है। नुहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ही बोले हम, बताओ। हम अभी कैसे ही बोले नुहा को कि वाई आर यू लेट। नुहा तो बोलेगी सर कल तो आपने क्लास में भी नहीं आए थे, आप तो आप क्या पूछ रहे हैं लेट के बारे में? नुहा टाइम से आया करे थोड़ा, है ना? चलिए देखिए, कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? CaCl2 will dissociate into calcium 2 positive plus 2Cl negative। ठीक है ना? इससे ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी आयंस दैट यू आर हैविंग। अब वही होगा कैथोड में, कैटायन जाएगा कैथोड में, कौन आएगा? कैटायन। व्हाट इज द कैटायन? कैल्शियम 2 पॉजिटिव। हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट विल यूज? इट विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू कैल्शियम सॉलिड। Similarly, at anode, what will happen? At anode, you will have Cl negative, and it will get converted to, इसका न्यूट्रलाइज फॉर्म क्या होगा? Cl2, और 2 Cl लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, प्लस इट विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं, तो प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी, प्रोडक्ट होगा आपके पास क्या? कैल्शियम सॉलिड एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक्वस लेंगे। लेट मी नो इफ यू आर डन राइटिंग टिल द सेकंड वन, मोल्टन CH3, तो अगर हो गया तो। हर्षा, मैं ऑडिबल? हर्षा, Yes, sir. हाउ इज द वॉइस टुडे? सैटरडे संडे वाली क्लास के रिलेटिव बताइए। Yes, sir. It's better. बेटर? Yes. वेटिंग फॉर खदीजा, नोहा, हर्षा एंड यहिया। Waiting for Khadija and Yahya now. Just waiting for Khadija.
खदीजा, आर यू डन? क्या चाहिए अब तक तो खदीजा? क्या लिख रहा है इतना ज्यादा? लेट मी नो इफ यू आर नॉट डन. राइट द थर्ड वन. Aqueous NaCl solution with platinum electrode. अच्छा, बाय द वे, aqueous NaCl solution को और क्या बोला जाता है? ब्राइन बोला जाता है ना. आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा होगा ब्राइन सॉल्यूशन. ये सोनो प्लीज टेल मी. याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना. तो ब्राइन ब्राइन आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. दिस NaCl, ठीक है ना. ब्राइन इज व्हाट? इट इज aqueous NaCl. NaCl नहीं सर, aqueous NaCl. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर द स्पीशीज प्रेजेंट हियर इन aqueous NaCl? अब इसको जरा देख लीजिएगा. डोंट राइट विथ मी, प्लीज लीव योर पेन असाइड, प्लीज सी हियर. स्पीशीज क्या क्या है? Na पॉजिटिव, और आपके पास रहेगा Cl नेगेटिव, और आपके पास क्या रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल. दीज आर द थ्री स्पीशीज which will be present. Now, ये तो आपके पास देखते हम लिख ही लेते हैं. पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड. Na पॉजिटिव जाएगा कैटायन. It will eat one electron and it will become Na, solid. Other thing that can happen, water and can also go to the cathode, H2O. H2O जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, H2O जब कैथोड में जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, ठीक है ना. H2O कहाँ जा रहा है? कैथोड में. तो व्हाट इज द पॉजिटिव पार्ट इन वाटर? वाटर में दो पार्ट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक OH है ना. OH में पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट. हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव पार्ट है तो आपको मिलेगा क्या? H2 गैस. ठीक है, क्या मिलेगा आपको? H2 गैस मिलेगा. अच्छा, H2 गैस यहाँ पे आपने लिखा. देन वी कैन से दैट H प्लस जो था, देखिए HOH ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, वाटर को. ये पॉजिटिव वाला पार्ट, तो व्हाट हैपेंड टू दिस पॉजिटिव पार्ट? इट गॉट न्यूट्रलाइज्ड. व्हाट इज रिमेनिंग? OH इज रिमेनिंग. तो आपने OH लिख दिया. ठीक है. अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे. तो वी आर हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सही तो बन नहीं रहा है 3 हाइड्रोजन के लिए. तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए. ठीक है. आई होप नाउ इट इज बैलेंस्ड. OH नेगेटिव है यहाँ पे, 2 OH नेगेटिव है. चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली हमने स्टार्ट कैसे किया था आपको हम फिर से बता देते हैं. देखिए, ठीक है, रिएक्शन याद करने की बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है आप लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट water is HOH. The positive part in water is H plus. This is positive part. So water when it is going to get reduced, the water क्या होगा? Reduce होगा in cathode. Then it will get converted to H2. और अब बचा क्या है? OH बच गया है, तो plus you will write OH negative. Is it balanced? No, it is not balanced. We have 3 hydrogens here. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है आपके पास? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है ना. तो यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करके. यहाँ पे भी आप एक हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए. नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड. चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया. ठीक है. चलिए, ये तो रिएक्शन की बात हो गई. हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन? हाउ आर यू गोइंग टू राइट द रिएक्शन? नाउ व्हिच ऑफ दीज रिएक्शन कैन अकर? ध्यान दीजिएगा. द E नॉट ऑफ sodium positive to sodium, it is equal to minus 2.71 volts, and the E naught of H2O to H2, it is equal to minus 0.83 volts. ठीक है. रिडक्शन हो रहा है दोनों केसेस में, है ना. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज हायर वैल्यू? माइनस 2.7 बढ़ा है या माइनस 0.83 बढ़ा है? विच वन इज हायर? टेल मी गाइस. Minus 0.83. आई होप एवरीवन इज क्लियर, है ना. माइनस 0.83 इज लार्जर. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा साइज का मैटर आ जाएगा. इफ यू कंपेयर सोडियम एंड वाटर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी लार्जर इन साइज, बट द डिफरेंस, first criteria is going to be always what? The reduction potential and the oxidation potential in the case of anode. Here we are looking at cathode, that is why we will talk about the reduction potential. The reduction potential of these two are very different. मतलब बहुत ज्यादा difference है दोनों में. Why what is going to happen in this case? H2O is going to reduce. और क्या मिलेगा? H2 gas in the anode मिलेगा. Sorry, इसके अंदर cathode मिलेगा.
Now let's look at possible reaction सर at आपकी आवाज anode. क्रैक हो रही है. Is there anyone who is facing this thing या फिर only यही आप? Am I audible? Am I audible, Your guys? voice was breaking. Now it's fine. Yes sir, Yeah, now now it's it's. fine. ठीक है. Possible reaction at anode. First reaction तो हो सकता है इसका Cl negative to yield 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. The E naught reaction it is equal to minus 1.36 volt. जहाँ तक हमको याद आ रहा है. हाँ यही है. Then the next we have water. वाटर में फिर से देखिए H2O है. H2O में नेगेटिव पार्ट विल गेट व्हाट? नेगेटिव पार्ट विल गेट ऑक्सीडाइज. तो नेगेटिव पार्ट से क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन गैस O2 प्लस यू विल गेट H प्लस. ठीक है. अब इज द रिएक्शन बैलेंस? नो. हियर वी हैव O2 तो यहाँ पे आपको 2H2 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 4H पॉजिटिव करना पड़ेगा. हियर इट इज न्यूट्रल. पॉजिटिव चार्ज तो आप ला नहीं सकते ना कहीं से, इसको भी न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन. And the E naught value for this reaction is equal to minus 1.23 volt for this reaction. So which is greater, minus 1.36 or minus 1.23? Which one is larger? Minus 1.23. Minus 1.23 is larger. But हाँ सही है. But यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे you can see that these E naught values, the oxidation potential of fluoride and the oxidation potential of water molecules, these are very comparable. 1.36 and 1.23 are not that different. काफी कंपेरेबल वैल्यूज है. एंड दैट इज व्हाई द साइज एज वेल एज द चार्ज कम्स इनटू प्ले. अब ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पे आप लोग इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ध्यान सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से. ठीक है ना. वी हैव हियर लेट अस सपोज एनोड. ये आपके पास एनोड है. ठीक है. एनोड में क्या है? एनायन. एनोड होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज होता है. एनोड में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. नाउ लेट अस सपोज वी हैव क्लोराइड Cl नेगेटिव और आपके पास है वाटर. ठीक है. ध्यान दीजिएगा जरा. व्हेन क्लोराइड रीचेस, व्हेन क्लोराइड, एक तो क्लोराइड को पहुंचना पड़ेगा यहाँ पे, then only the reduction, sorry, then only the oxidation will happen. Make sense? Yes or no? माइक ऑन करिएगा ना प्लीज, एक दो कोई लोग. ठीक है, माइक Yes, ऑन sir. करके रखिएगा प्लीज. ठीक है. Similarly, water has to reach the anode, then only what will happen? Oxidation will happen. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Look at the charge and tell me which will be reaching the anode quickly, Cl negative or H2O? चार्ज देख के बताइए जरा. Cl negative. Cl negative है ना, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है. अब होता यह है कि देखिए, इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेर वेरी डिफरेंट, तब तो एनोड वुड से नहीं 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 क्लोरीन तुम जाओ 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 जाओ, पानी आएगा तब हम पानी आएगा देन आई विल डू सम ऑक्सीडेशन. But chloride ions are so fast because of the negative charge that they very easily reach the anode, and because they are reaching anode much faster than water, what happens? Chloride ions, they get oxidized much easily than water molecules. And although water is having higher oxidation potential than chloride ions, water does not get oxidized. What get oxidized? Chloride. So पानी, ये तो आपके पास ना क्या है? This is the value when the water molecule has reached here. In order to attract the water molecule, in order to water molecule to reach the anode, we have to put even more voltage. और वही जो एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है टू attract the water molecules to reach the anode, that is known as over potential. ठीक है. उसके बारे में तो हम लिखेंगे ओवर पोटेंशियल के बारे में, बट यहाँ पे आप लोग अभी लिख लीजिए ऐसे, इनको लिख लीजिए. चलिए. Sir, the size of Cl is smaller than water molecule. नो, साइज इज नॉट स्मॉल. मतलब उसमें कंपैरिजन हो सकता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हैव 3 एटम्स, बट साइज का डिफरेंस तो रहेगा, बट चार्ज यहाँ पे मैटर कर जाएगा. ठीक है.
हम इसको लिख ही देते हैं the formation of O2 in anode is slow as very few H2O, या फिर अगर आपके पास वाटर में OH नेगेटिव मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, वेरी फ्यू H2O और OH नेगेटिव reaches the anode, ठीक है. This slowness leads to the need of greater potential than E naught. This extra potential required is called over voltage. या इसको ओवर पोटेंशियली बोला जाता है, और ओवर पोटेंशियल. Further we can write, therefore Cl negative is preferred at anode. और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स हो जाएगा H2 गैस at cathode and Cl2 gas at anode. Anyone still writing? Anyone still writing? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Anyone still writing? No, sir. Right.
अगला है आपका फोर्थ नंबर है aqueous AgNO3 with platinum electrode with platinum electrode. What are the species here? हमारे पास Ag पॉजिटिव होगा, NO3 नेगेटिव होगा और हमारे पास वाटर होगा। कैथोड में व्हाट आर द रिएक्शन दैट कैन अकर? Ag. Ag, हाँ, Ag positive plus electron will give you Ag solid. This can occur. और what can occur? Water वाला होगा, है ना? We have written this previously. 2H2O plus 2 electron gives H2 plus 2 OH negative. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा होगा? इफ यू रिमेंबर, Ag इज छापा एलिमेंट, इसका रिडक्शन रिडक्शन नहीं हो रहा है ना, इसका जो E0 होता है वो तो पॉजिटिव होता है, and we have seen that E0 for this reaction it is what? It is negative 0.83 volts. तो ऑब्वियसली Ag वाला होगा, है ना, बिकॉज ये तो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे अब तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, ये और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। Ag पॉजिटिव तो Ag विल बी व्हाट? विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, Ag पॉजिटिव विल बी प्रिफर्ड। अगर हम एनोड की बात करें, एट एनोड व्हाट शुड हैपन? देखिए NO3 के लिए तो हम ना उसको छोड़ ही देते हैं, NO3 नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज NO3 नेगेटिव इज सच अ ह्यूज मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, एंड this reaction will occur. 2H2O gives O2 plus 4H positive plus 4 electron. ठीक है, this reaction occurs. NO3 negative नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? Because it is very large molecule. तो इसमें आगे भी आपको लिख लीजिएगा ऐसा ना, प्रोडक्ट्स you will have Ag solid at cathode and O2 gas at anode. Anyone still writing? Anyone Yes, still sir. writing? आराम से लिखिए। No, sir. हाँ, यस सर वाले थोड़ा ज्यादा बोल। If you're writing, then I have to say. खदीजा, आप मंडे में जो सोल्यूशन की क्लास हो रही थी उसमें आप भाग गए थे बीच में, है ना? What, नहीं sir? नहीं 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 नहीं, खदीजा आप नहीं, आप यू आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन क्लास ना? Yeah. पूरे क्लास में थे आप? हाँ. जेबा आई थिंक चली गई थी, कोई तो गया था बीच में, कांट रिमेंबर। Done, sir. ठीक, फिर लिखिएगा aqueous H2SO4 with platinum electrode. Aqueous H2SO4 with platinum electrode. स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है H प्लस, you will have SO4 2 negative, you will have H2। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, कैथोड में देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो H प्लस या तो वाटर, दोनों से ही क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। आई विल शो इट टू यू गाइस। ठीक है, रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी रिएक्शन नहीं पूछा है, प्रोडक्ट्स पूछ लेते हैं सीधा, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर द प्रोडक्ट दैट्स इनफ। तो यू विल गेट H2 गैस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है ना।
For water, what will happen? You will have 2H2O plus 2 electron is going to give you H2 plus OH negative. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है whether H plus is getting. You have to remember what? You have to remember the. आपको क्या याद रखना? आपको याद रखना प्रोडक्ट H2 will be formed. But अगर reaction पूछ भी लेना, then you are going to say that sir this reaction will occur. Why? Because in acidic medium H plus concentration ज्यादा होगी, तो H plus will easily get oxidized. Also, the first reaction इसका E naught जो होता है, that is we have known that the 0 volt. E naught of this reaction is obviously minus 0.83. ठीक है, so if I want to see which reaction occurs, then we will say that will be the first one because उसका reduction potential ज्यादा है ना, 0 is more than minus 0.83. Now in anode there are two conditions है ना, ध्यान से देखिए जरा. In anode, if you have dilute solution, अगर आपके पास dilute है तो SO4 2 negative, तो एक तो C, it is a very large polyatomic ion. So and also in dilute you will not have enough SO4 2 negative to reach the anode. So what will happen? Water will get oxidized. 2H2O will get converted to O2 plus 4 electron plus 4H positive in the dilute medium. जब आप कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो ऑब्वियसली सल्फेट आयंस का क्या हो जाएगा? सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन होगा इन कंसंट्रेटेड. कॉन्क में क्या होगा? SO4 2 negative will get oxidized to S2O8 2 negative. बेसिकली ये परोक्साइड बन जाता है यहाँ पे, है ना, परोक्साइड वाला बन जाता है फॉर्म, लाइक O and O बॉन्ड इज फॉर्म. इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो ऑक्सीजन का होता है, वो हम एक नोट लिखा देंगे आप लोग को, ठीक है. प्लस यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स and because it is in acidic medium this can further get H plus ions and it will become H2 S2O8. This is peroxo disulfuric acid. Peroxo disulfuric acid. Peroxo disulfuric acid है ना. यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होता है? In oxidation of SO4 2 negative, oxygen atom is oxidized. ठीक है, दो SO4 2 नेगेटिव हम लोग को यूज करना पड़ेगा. एक SO4 2 नेगेटिव से एक ऑक्सीजन, दूसरे से दूसरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन. अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है. एंड इसके बाद जो है आप, अच्छा, प्रोडक्ट्स लिख लेंगे हम लोग, तो कॉपी कीजिए पहले. इसके बाद ऐसे ज्यादा तो है नहीं. आफ्टर दिस लर्न, ठीक है, तो फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो होपफुली नेक्स्ट क्लास फैराडेज लॉ और ये टॉपिक दोनों ही नेक्स्ट क्लास से पहले एक क्लास रख लेना थर्सडे के दिन आप लोग. कल क्लास है आप लोग की ना, कल की क्लास को Yes, sir. एक्सटेंड कर लेंगे होपफुली. Okay. कल क्लास को होपफुली एक्सटेंड कर लेंगे. डन एवरीवन? Yes, sir. ध्यान दीजिए. तो तो पहला केस अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो ऐसे ले लेता है कंसंट्रेटेड H2O4 और यहाँ पे आपके पास कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा.
All of you done yes or no, please me. 1 minute, sir. Right.